बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये जो लेक्चर है, इट इज द फिफ्थ लेक्चर ऑफ क्वांटम फिजिक्स। बेटा इट इज द फिफ्थ लेक्चर ऑफ द क्वांटम फिजिक्स। मैं जरा वन बाय वन चीजों को दोहराना चाहता हूं जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं अब तक। ठीक है ना, जो मैं वन बाय वन चीजें आपके सामने अब तक दोहरा चुका हूं, पहले कह चुका हूं मैं उनको। आई एम जस्ट रिपीटिंग ऑल दोज थिंग्स व्हिच आई हैव सेड अर्लियर। And the very first thing is that the photoelectric effect challenged the ideas prevailing about the nature of light way back in 1880. Okay, it is the fifth lecture, and it will take 7 lectures to finish photoelectric effect, and then another 3 or 4 that will do the spectrum analysis, and then another 3 or 4 that will do the X-ray. It's the longest chapter, probably after magnetism. It is the longest chapter. If it is taught honestly, photoelectric effect challenged the ideas prevailing about the nature of light. And you know that the light is emitted in the form of energy packets, quantum of energy, packet of electromagnetic radiations, which are called photons. These photons are also described as arrows of light. Okay, energy of photon. Energy of photon, you know it. It is given by AHF, where H is the Planck's constant, whose value is 6.626 into 10 raised to power minus 34 joules second. H can also be understood as energy of one cycle. H can also be understood as what? Energy of one cycle. You can regard energy filled in one cycle as the value of H. So out of F cycles which are emitted per second. Okay. And it is due to this reason that H being the energy of one cycle, the energy of 2 cycle is equal to 2H, the energy of 3 cycle is 3F, and F cycle is FH or HF, and this makes the energy of one photon. So energy of photon in terms of wavelength is equal to what? Hc upon lambda. And the bold statement of quantum physics was that moving photon has momentum. That momentum was given by P is equal to H over lambda. Now the things that we covered in the first or second chapter, out of them, this was the point that if a parallel monochromatic, what is monochromatic beam? Monochromatic beam is one which has got the same frequency, same wavelength. All the photons are identical, that they have same frequency and they have same wavelength, and they belong to the same branch of electromagnetic spectrum. And if a beam contains all photons having a wavelength of 530 nanometer, then we will call it a monochromatic beam. Okay, I am missing one O over here, monochromatic beam. Okay, and if you say practically speaking, it is difficult to obtain a monochromatic beam. Even if we are able to obtain a red light or a blue light, it might be containing a range of wavelengths. It's difficult, experimentally, it is difficult to obtain a pure monochromatic beam. However, if there is a parallel monochromatic beam having n photons moving per second, there are n photons in 1 second of that beam, then the total momentum of the beam per second is nh over lambda. You multiply the number of photons with the momentum of one photon, you'll get the total momentum of the beam. Then we also studied that if these all photons are absorbed by a black surface, then the force exerted by the beam is equal to nh over lambda. We proved it. And if you don't understand it, I would refer it that you should see this lecture number 2. Then if all these photons are reflected by a shiny surface, then force exerted by is equal to 2nh over lambda. These were the points that we covered earlier. Okay. Then if we summarize the photoelectric effect, summarizing photoelectric effect is that when light of sufficiently high frequency falls on a metal surface,
When a light of sufficiently high frequency falls on metal surface, electrons are emitted. This is called photo emission or photoelectric effect. This phenomenon was discovered way back in 1870 or so, okay, in a series of experiments that started from 1840. Okay, so this was photoelectric effect, or briefly, if we say it, it's a photo emission. Photoelectric effect is one of those two experiments which are considered as the strong supporter of quantum theory. Okay, we studied that photoelectric effect and Compton effect are the two experiments which prove that light has a particle nature. Light has some momentum associated with it. Okay, and then we defined certain things. Okay, one of them was, this is photoelectric effect. And then the 10th point was work function, definition of work function. What is work function? Can you define what is work function? Work function is the minimum frequency, but sorry, it's the minimum energy, is the minimum energy required to eject electron out of metal surface. It means that if you supply energy less than this, the electron from the metal will not get out. Okay, and you should also note down this fact that it is the minimum energy. Minimum का मतलब ये है अगर किसी फोटोन का वर्क फंक्शन, अच्छा वर्क फंक्शन के लिए सिंबल W भी इस्तेमाल होता है और फाई भी इस्तेमाल होता है. आपको पता है कि आप सिंबल फाई जो है वो एंगल्स के लिए भी इस्तेमाल करते रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए भी इस्तेमाल करते रहे हैं, आपने इसको काफी और चीजों के लिए भी इस्तेमाल किया है. अब आ जाते हैं जनाब वर्क फंक्शन के बारे में कि वर्क फंक्शन क्या है. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल सरफेस. अच्छा, अब इसका मतलब ये है, फर्ज करें कि किसी मेटल का वर्क फंक्शन है 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका मतलब ये है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए वो 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बाज इलेक्ट्रॉन्स उससे ज्यादा एनर्जी लेकर भी बाहर आएंगे. कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे माइट बी लाइंग डीप इन द मेटल, और वो जो है उनको बाहर आने के लिए मुमकिन है 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए. लेकिन एक सर्टन बेसिक मिनिमम फ्रीक्वेंट एनर्जी होती है जो सबसे आसान इलेक्ट्रॉन, फर्ज करें कि ये उसकी सरफेस है, ये उसकी सरफेस पे ये एटम्स है, ये उसकी सरफेस पे क्या है, ये उसकी सरफेस पे एटम्स हैं. सबसे आसान ये वाला इलेक्ट्रॉन है जिसको कोई फोटोन आकर लगे और इसे बाहर निकाल दे. लेकिन इस आसान की भी एक बेसिक मिनिमम वैल्यू है. इस आसान इलेक्ट्रॉन को जो इजी टारगेट है, जिसे आराम से बाहर निकाला जा सकता है, इसे भी बाहर निकालने के लिए एक बेयर मिनिमम एनर्जी चाहिए, तो वो वर्क फंक्शन कहलाती है. वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल सरफेस. अच्छा, यहां पर एक चीज आई थी और वो थी जनाब, देखें वो है जी कि एनर्जी पूलिंग इज नॉट पॉसिबल. ये क्या बात है? ये बात मैंने लेक्चर नंबर 4 में कही थी जो कल सुबह दिया गया था, लेकिन मैं उसे दोहरा देता हूं. एनर्जी पूलिंग इज नॉट पॉसिबल का मतलब ये है कि फर्ज करें कि ये मेटल है और इस मेटल का वर्क फंक्शन है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. चले 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लेते हैं. ऐसा नहीं होगा कि 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दो फोटॉन्स मिलें और मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, यानी एनर्जी पूलिंग नहीं है. तो ये बात पुराने जो लेक्चर है उसमें ये कही गई है कि 2 और मोर इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स कैन नॉट पूल एनर्जी, कैन नॉट शेयर एनर्जी, कैन नॉट गिव टुगेदर एनर्जी टू वन इलेक्ट्रॉन, के उसको बाहर निकाल लें. ये पॉसिबल नहीं है.
अगर ऐसा होता तो हम फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन ये ना कहते कि सब लाइट ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी, फिर हम सब वैसे ही कह देते कि लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ मेटल सरफेस, ऑल इट नीड्स इज दैट इट शुड बी इंटेंस। वो हम यूं कहते हैं। तो एनर्जी पूलिंग पॉसिबल नहीं। एनर्जी पूलिंग इस तरह से भी पॉसिबल नहीं है और इस तरह भी पॉसिबल नहीं है कि अगर फर्ज करें कि वर्क फंक्शन जो है वो 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कोई फोटोन आए, उसके पास एनर्जी 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो और वो अपनी एनर्जी से 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दे, यानी 2 फोटॉन्स मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। 2 or more photons cannot pool energy to take an electron out of metal surface, and one photon, one very strong energetic photon of very high frequency having energy more than twice, thrice or 4 times that of work function cannot eject more electrons, cannot eject more than 1 electron. वो एक तो 1 photon interacts with only 1 electron. तो पहली बात यह है कि 1 photon interacts with only 1 electron. ये जो चीज है ना, ये पॉइंट है जो कि फोटो मिशन के फेवर में, क्वांटम फिजिक्स के फेवर में जाता था। ये वो पॉइंट था जो एक पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करता था या फोटोन के फेवर में बात करता था। ये पॉइंट है। अब इसके बाद ये हो गया कि एनर्जी पूलिंग इज नॉट पॉसिबल इन एनी स्टाइल। ओके, या तो मतलब वो नहीं, ना तो 3 फोटोन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ना एक फोटोन मिलकर मोर 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स एमिट करवा सकते हैं। और एक और बात यह है कि नॉट ऑल फोटॉन्स मीट इलेक्ट्रॉन्स, नॉट ऑल फोटॉन्स, not all photons by any chance, not all photons by any chance hit an electron directly. Not all photons by any chance hit an electron directly. It depends upon probability. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये देखें, ये मेटल सरफेस है, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम है, ये चौथा एटम, और ये एक 5वां एटम, और ये इनके बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्ज करें बड़े आसान टारगेट है, ये रेड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूं जो इजी टारगेट है, जिनको फोटोन आकर लगे तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। अब आ जाती है बात, आ जाती है, फर्ज करें कि वर्क फंक्शन जो है वो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मुख्तलिफ मेटल्स के मुख्तलिफ वर्क फंक्शन होते हैं, और फर्ज करें कि यहां से फोटॉन्स आ रहे हैं। ये फोटॉन्स सारे के सारे जो हैं, ऑल ऑफ दीज फोटॉन्स हैव एनर्जी ऑफ से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारे फोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रखकर आ रहे हैं। इन सारे फोटॉन्स में ये एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा सकते हैं, मगर इनमें से सिर्फ चंद फोटॉन ऐसे हैं जिनके रास्ते में इलेक्ट्रॉन आएगा और वो अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? इसी तरह से ये वाला फोटॉन और उसके बाद ये वाला फोटॉन इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और ये वाला फोटॉन इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। बाकी फोटॉन्स जो हैं वो मुमकिन है रिफ्लेक्ट हो जाए, सिंपल रिफ्लेक्ट हो जाए। अब इसमें जो पर्पल एरो, रिफ्लेक्टेड एरो दिखाया, ये मैंने फोटॉन को ही दिखाया कि फोटॉन सब खुद ही वापस जा रहे हैं, और जो ग्रीन में एरो दिखाया है वो इलेक्ट्रॉन है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन है जो यूं मूव कर रहा है, और पर्पल में जो दिखाए हैं वो फोटॉन्स ही हैं कि फोटॉन सब आए थे वही वापस चले गए हैं। फोटॉन आया था और वही रिफ्लेक्ट होकर खुद वापस चला गया। तो पता ये चला कि अगर one photon interacts with only one electron, but it is not necessary that every photon will find an electron in its way. ठीक है ना? ये सक्सेस रेट
5 to 10% होता है। इसका मतलब है कि अगर 100 photons मेटल पे गिरें, and even if they do have energy more than work function, that they are able to eject electron out of metal surface, still their success is only 5 to 10%। 5 to 10% चांस, 100 फोटॉन गिरेंगे तो तकरीबन 5 और 10 के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, मुमकिन है 10 इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब 200 फोटॉन्स गिरेंगे तो तकरीबन आप कह लें 20 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा निकलेंगे। 300 फोटॉन्स गिरेंगे तो तकरीबन आप कह लें 30 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। 400 फोटॉन्स गिरेंगे तो तकरीबन आप कह लें 40 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे एट मैक्सिमम, अगर 10% हम ले लें सक्सेस रेट। अब आगे चलते हैं। अब देखें, और जो एक बात ये भी सुन लें कि ये देखें, ये एक मेटल है, ये एक मेटल है। फर्ज करें कि इसका वर्क फंक्शन जो है, मैं मिसाल देता हूं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आप देखें आप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बेशुमार फोटॉन्स भी मारेंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं एमिट होगा, इलेक्ट्रॉन इससे नहीं एमिट होगा। इसको हम पहले, ये चीज मैंने पिछले लेक्चर में लिखवाई भी थी, मैं अभी बोल देता हूं इसको कि फोटो एमिशन विल नॉट टेक प्लेस इफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज लेस देन द वर्क फंक्शन, no matter how intense the beam may be। how intense the beam may be से मुराद नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है मगर वो सारे 1.55 इलेक्ट्रॉन्स के हैं तो वो उसको नहीं निकाल सकेंगे मेटल से वर्क, उसको इलेक्ट्रॉन को नहीं वो करवा सकेंगे, एमिट करवा सकेंगे। उसके बाद बेटा जिन फोटॉन्स की एनर्जी, देखें जिन फोटॉन्स की एनर्जी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, जिन फोटॉन्स की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी वो फोटोन है जो मिनिमम एनर्जी रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, उनकी फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उनकी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उनकी जो वेवलेंथ है, उन्हीं की वेवलेंथ को क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है कि नहीं? अच्छा, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की फिर क्या डेफिनेशन बनी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल सरफेस। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल सरफेस। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की क्या डेफिनेशन है? मैक्सिमम वेवलेंथ। आप देखें, फ्रीक्वेंसी पर आपने मिनिमम बोला, वेवलेंथ पर आप मैक्सिमम वेवलेंथ बोलेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा लंबी वेवलेंथ होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट नहीं करा सकेगी। तो threshold frequency, minimum frequency which can eject electron out of metal surface. If any beam has a frequency less than threshold frequency, it will not be successful in ejecting electrons out of metal surface. And if with threshold wavelength क्या होती? Maximum wavelength that a beam may have which can eject electrons out of metal surface. So अब दोबारा सुन लें, मैंने चूंकि ये बात, I'm not writing it. The reason is that I have explained it in the earlier lecture, but I'm just revising it. That the minimum frequency required to photo emission will not take place. Photo emission will not take place if energy of incident photon is less than the work function, no matter how intense the beam may be. Photo emission will not take place if frequency of photons is less than the threshold frequency, no matter how intense the beam may be. Photo emission will not take place if wavelength of the beam is bigger than threshold wavelength, no matter how intense the beam may be. No matter how intense the beam may be से मुराद क्या है? इससे मुराद है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा, क्योंकि इंटेंस ज्यादा होना फ्रीक्वेंसी के ज्यादा होने के मानों में भी आता है। मसलन अगर 100 फोटॉन्स रेड लाइट के जा रहे हों और 100 फोटॉन्स उसके जा रहे हों ब्लू लाइट के, तो चूंकि ब्लू लाइट की वेवलेंथ छोटी है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ब्लू फोटॉन जो है वो एनर्जी का एक बड़ा पैकेट है, रेड लाइट का फोटोन एनर्जी का एक छोटा पैकेट है। तो अगर दोनों की तादाद 100 जा रही हो तो उसमें फिर हम कहेंगे कि ब्लू लाइट इज मोर इंटेंस। तो इसका मतलब है इंटेंसिटी का जो लफ्ज है वो नंबर ऑफ फोटॉन से भी रिलेटेड है और फ्रीक्वेंसी से भी रिलेटेड है। तो यहाँ जो मैंने स्टेटमेंट्स दी, नो मैटर हाउ इंटेंस द बीम में बी, तो व्हाट आई वाज रेफरिंग टू वाज के जनाब वो क्या उसे कहते हैं, मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात कर रहा था। अच्छा, उसके बाद मेरी अगली स्टेटमेंट सुने। फोटो एमिशन स्टार्ट्स इंस्टेंटली इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट बीम is bigger than the threshold frequency.
photo emission start instantly if the energy of the photon is bigger than the work function, no matter how weak the beam may be. Weak the beam may be से मेरी मुराद है नंबर ऑफ फोटॉन्स की, यानी आप हाई फ्रीक्वेंसी के थोड़े से भी फोटोन मारेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। और क्या कहते हैं, अब इस ये चीज होगी कि द फोटो emission will take place instantly if the frequency and energy of the wave incident photons is bigger than threshold frequency and work function of the metal, no matter how weak the beam may be. No matter how weak the beam may be से मुराद है lesser number of photons। यहां पर मैं उनकी उससे किसी और चीज को रेफर नहीं कर रहा। Once photo emission starts, number of emitted electrons is number of emitted electron is proportional to the number of photons falling on the metal surface। अगर 100 photons आए हैं, अगर फर्ज करें 100 photons आए हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन निकले, और तो 200 photons होंगे तो 20 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और अगर 300 photons होंगे तो 30 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। दैट मींस फोटो करंट, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फोटो करंट कहलाते हैं। तो फोटो करंट जो है वो प्रोपोर्शनल टू वो है, फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस। बेटा मुझे बताएं, यहां तक किसी को नहीं अगर समझ आई तो मैं हाजिर हूं। ये मैंने अभी तक मैंने समरी ही की, अभी तक ये मैंने क्या की है, समरी की है जी। किसी ने कुछ पूछना है इसके हवाले से तो मैं हाजिर हूं। यहां से अब शुरू हो रहा है वो कॉन्सेप्ट जो पिछले किसी लेक्चर में नहीं आया, ठीक है कि नहीं, और उसका नाम है एनर्जी इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम क्या है उसका जी? एनर्जी इक्वेशन। और ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड, एनर्जी इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा जी, अब आगे देखिए बेटा, इसमें जो बात मैंने आपको बतानी थी, चूंकि, और आप ये चीज जहन में रखें कि वन फोटोन इंटरैक्ट्स विद ओनली वन इलेक्ट्रॉन, वन फोटोन इंटरैक्ट्स विद ओनली वन इलेक्ट्रॉन, वन फोटोन इंटरैक्ट्स विद ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है कि नहीं? अब वो क्या है जी? एनर्जी ऑफ energy of incident photon is equal to energy required to dig an electron out of metal surface plus kinetic energy of emitted electron। यानी एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से ही इंटरैक्ट करता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से ही इंटरैक्ट करता है, और वो उसको मेटल से निकालता भी है, और मेटल से निकालने की एनर्जी देने के बाद जो बच जाती है वो क्या करता है, वो उसकी वो बना देता है, काइनेटिक एनर्जी बना देता है। यानी इसको अगर मैं सेंकी डायग्राम के जरिए शो करूं तो सेंकी डायग्राम के जरिए ये इस तरह की बात बनती है। ये देखें, ये है जी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन।
ठीक है कि नहीं? ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है। इसमें से कुछ एनर्जी किसमें खर्च हुई? इसमें से कुछ एनर्जी खर्च हुई टू पुल इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल सरफेस, पुल इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल सरफेस, या एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्नैच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। और आपको पता है ये जो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ज्यादातर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कोई वो वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जो वैलेंस शेल में या इनर शेल्स में रोटेट कर रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर है उनके लिए तो निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। टू पुल इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल सरफेस, और फिर उसी में से कुछ एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? बाकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, अब आगे देखें आप लोग कि इसमें ना ये बड़ा एक वो है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको जरा दोबारा मैं आपको चाहता हूं कि आप इसको देखें। मैं अभी इसके इस तरफ आ रहा हूं, ये इसको कॉपी कर लिया हमने, इसको यहां पेस्ट कर देते हैं जी। अच्छा जी, ये अच्छा, आए जरा आप इसको गौर से देखते हैं और वर्क फंक्शन को भी ध्यान में रखें। ये देखें, ये एक मेटल है, ठीक है। इसका वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और फर्ज करें कि इसके ऊपर जो फोटॉन्स गिर रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है? उनकी एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो फोटॉन है जो आया, उसकी एनर्जी क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या हो सकता है? व्हाट कैन हैपन जी? ये कुछ हो सकता है कि उस 5 में से बाहर निकालने के लिए 3 खर्च हों और बाकी उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाए 2। ये पॉसिबिलिटी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहां ऐसे करके लिख लेता हूं। ये देखिए, ये चीज इधर आ गई, फिर इक्वल टू का निशान आया, ये चीज इधर आ गई, फिर प्लस आया और ये चीज इधर आ गई। बीच में ये इक्वल टू के मैं काफी सारे निशान बना लेता हूं, ठीक है कि नहीं? यूं कर लेते हैं इसको, यूं, ठीक है। अब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से मुमकिन है 3 निकालने में खर्च हुए हों वर्क फंक्शन के बराबर, और 2 काइनेटिक एनर्जी बन गई। मगर ऐसा भी हो सकता है उस 5 में से 3.5 निकालने में खर्च हो गई, क्योंकि वर्क फंक्शन की तो डेफिनेशन ये थी कि इट्स द मिनिमम एनर्जी। देयर कैन बी अ केस वेयर एन इलेक्ट्रॉन माइट नीड मोर एनर्जी देन वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन मोर एनर्जी निकालने में वो मांगे उससे, मेटल से डीप हो थोड़ा सा मेटल में, तो फिर उस इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी, क्योंकि ज्यादा तो उसकी निकलने में खर्च होगी। मेटल से उसको बाहर निकालना ही, वो नीचे था इलेक्ट्रॉन, उसको बाहर निकालने में ही ज्यादा एनर्जी लगी। सर जी जी, मैं सुन रहा हूँ। सर, अगर मेटल पॉजिटिवली चार्ज हो थोड़ा सा तो अच्छा, और सैयद रिजवान द ग्रेट ने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया कि अगर मेटल पॉजिटिवली चार्ज हो, तो जी यू आर राइट, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि अगर वो मेटल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो वो अपने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पर उसकी ग्रिप ज्यादा हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट द मेटल द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक दैट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन हम जो ये कह रहे हैं, हम वो वाला केस कर रहे हैं assuming that metal is not sufficiently charged, positively charged। हम ये कहते हैं कि अभी इनिशियल स्टेजेस ही हैं, एक मेटल पर लाइट आकर गिरना शुरू हुई है, उस वक्त के इवेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। यू आर राइट, you are very right कि when the metal will get positively charged and as it will become more and more charged, it will tighten its grip on its remaining electrons and then photoelectric effect may not occur। यू आर राइट, बहुत अच्छा, आपने बहुत सही, आपने रेलिवेंट बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया।
अच्छा जी, अब ये चीज देखें, आप फर्ज करें कि यहां पर वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिरे और इलेक्ट्रॉन वो उसको बाहर निकालने में 4 खर्च हो गए। वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर था, यानी समझे कि वो कहीं और नीचे था, कहीं और नीचे था, और उसको निकालने में बाहर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग गए। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग गए, उस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो होगी 1, और एन मुमकिन है कि उसको निकालने में 4.5 खर्च हो, तो फिर उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी 0.5। और अगर पांचों के पांचों उसे निकालने में ही खर्च हो गए हों, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। इसका मतलब ये है, यहां से एक बात निकली, यहां से एक बात पता चली कि इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स will have range of kinetic energies from 0 to Ke maximum। और Ke maximum क्या होगी? एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। यानी सिर्फ जब जिसम वो, यानी ये वाला केस, इस वाले केस में आपको पता है ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, ये आपको पता है वर्क फंक्शन है, और आपको पता है ये क्या है? Ke मैक्स। ठीक है कि नहीं है? तो सर अब आप अगर ये चीज देखो जी बेटा। अगर अगर ये केस हो तो फिर उसकी सिग्निफिकेंस कहाँ गई वर्क फंक्शन की? क्या मतलब? एक इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लग सकते हैं, 3.5 भी, 4 भी, 4.5 भी, तो जो वर्क फंक्शन जो हम वो पहले मतलब बता देता है आपको, उसकी सिग्निफिकेंस रही नहीं फिर। नहीं, वर्क फंक्शन की सिग्निफिकेंस तो है ना, वर्क फंक्शन की सिग्निफिकेंस तो है बेटा, वर्क फंक्शन की सिग्निफिकेंस तो है काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालने के लिए। जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालने के लिए। ठीक है कि नहीं? ठीक है सर। सर तो हमें कहते हैं वर्क फंक्शन की लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू कैसे पता लगेगी? जी, वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन हमारी लोएस्ट वैल्यू है बेटा। वर्क फंक्शन हमारी क्या है? नहीं सर, लोएस्ट पॉसिबल सर वैल्यू। उसको सर पता कैसे लगाएंगे? वो कैसे निकाल, वो भी आ रहा डिटरमाइन हूँ कैसे करेंगे? मैं उस तरफ आ रहा हूँ, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, मैं अभी उस तरफ आ रहा हूँ, और मैं उसको वो करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये जो बेटा ऊपर का लेवल है, ये वाला, ये जो चीज है, वो वाला केस, वी आर डेवलपिंग एनर्जी, वी आर राइटिंग इक्वेशन for only those lucky electrons which come out with the highest frequency, with those lucky electrons, सिर्फ उनकी which have maximum kinetic energy। सिर्फ उनके बारे में लिखेंगे which have maximum kinetic energy। ठीक है कि नहीं? हम सिर्फ वी आर राइटिंग इक्वेशन फॉर ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स which are very lucky, which have maximum kinetic energy। ठीक है बेटा कि नहीं?
जी, आगे चलते हैं। वो कौन से हैं, वो इक्वेशन फिर क्या बनेगी वो आपके सामने लिख देता हूं। AHF, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये इक्वेशन है। और ये इक्वेशन लिखी गई है सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो बड़े ही शहजादे इलेक्ट्रॉन्स थे, जिन्होंने सिर्फ वो किया, सिर्फ वर्क फंक्शन यूज करके बाहर आ गए। उन्होंने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल ही नहीं किए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को यूज ही नहीं किया। ठीक है कि नहीं? उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये लिखी गई है इक्वेशन। अब आगे चलते हैं, इसको किस किस तरीके से लिखा जा सकता है। इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, यूं भी लिखा जा सकता है। इसी इक्वेशन को यूं भी लिखा जा सकता है। आपको पता है कि वर्क फंक्शन वाले जो फोटॉन्स होते हैं, जो वो फोटॉन्स जिनके पास सिर्फ इतनी एनर्जी हो जो वर्क फंक्शन के बराबर हो, उनकी फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये बात, ये यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ये सिग्निफिकेंस, ये जो फोटोन है ये वो है जिसकी एनर्जी सिर्फ उतनी है जितनी वर्क फंक्शन के बराबर। और इसी इक्वेशन को फिर आगे मॉडिफाई किया जा सकता है। ये एक इक्वेशन इस तरह भी लिखी जा सकती है, ठीक है कि नहीं? और इसी इक्वेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, वापस उसी तरह से लिख लें, HF वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। और आपको याद होगा, जो अगर आपने लेक्चर नंबर 3 देखा है, अगर आपने लेक्चर नंबर 3 देखा है जो परसों रात को हुआ था लेक्चर, जो 8 फरवरी की रात को हुआ था, उसमें क्या हुआ था? उसमें कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल का जिक्र था। स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू चार्ज से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मेजर हो सकती है। तो ये भी इक्वेशन है इस तरह से भी। तो इसका मतलब है ये वाहिद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है ना, मैंने एक इक्वेशन के इतने ज्यादा फॉर्मेट्स आज तक मैंने किसी के नहीं देखे जितने मैंने इस एक इक्वेशन के देखे। मैंने आज तक फिजिक्स में जितने भी इक्वेशंस पढ़ी देखी हैं, उनमें से मैंने सबसे ज्यादा फॉर्मेट्स इस एक इक्वेशन के देखे। तो ये इस तरह से हो गया। और उसके बाद जी, बेटा मेरी बात सुने, यहां तक ठीक है? जी, मुझे बताएं बेटा यहां तक। ठीक है, शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखें, आगे चलते हैं। अब इस पर जाहिर है न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं एक ही न्यूमेरिकल कराता हूं और उस एक न्यूमेरिकल को कोशिश करता हूं कि मैं ज्यादा उसमें चीजें ला कर रख सकूं। ये देखें, ये जनाब ग्लास बल्ब, ये न्यूमेरिकल हो गया जनाब। ये एक ग्लास बल्ब, ये कर्व्ड मेटल प्लेट है, और ये टर्मिनल पी है। और यहां पर वैक्यूम है।
यहां माइक्रो एमीटर है, ये स्विच है। और आप एक बात नोट करें कि ये टर्मिनल पी नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है कि नहीं, और ये जो कर्व्ड मेटल प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन काफी हद तक ये पॉजिटिवली चार्ज है। और ये वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई है, और यहां पर एक वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है जिससे वोल्टेज भी मेजर हो सकती है, ठीक है कि नहीं। ये कनेक्ट कर दिया गया, ये सेटअप है। और यहां पर बिल्कुल इसके सामने, बिल्कुल इसके सामने यहां पर आप एक बल्ब को लगा दें, ये बल्ब है, ठीक है कि नहीं। और ये बल्ब बड़ा अच्छा बल्ब है, बड़ी हाई क्वालिटी का बल्ब है, ये मोनोक्रोमैटिक बीम प्रोड्यूस करता है। मोनोक्रोमैटिक बीम क्या होती है? जो एक वेवलेंथ की हो। और मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकली लैब में मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑब्टेन करना मुश्किल होता है, और मोनोक्रोमैटिक सोर्स महंगे होते हैं, कि जो पर्टिकुलरली नोन हो कि वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही एमिट करेंगे, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ। आप कभी भी पेपर 5 में ये सेंटेंस नहीं लिख सकते कि आई जस्ट चेंज द फ्रीक्वेंसी, नो। आप कहेंगे इफ आई वांट टू चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीम आई विल हैव टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर very famous known monochromatic sources which can produce wavelength of particular frequencies। यानी आपको बाजार से अलग एक सोर्स लेना पड़ेगा जिसको पता हो कि ये 200 नैनोमीटर प्रोड्यूस करता है लाइट, अलग लेना पड़ेगा एक कि जी ये 350 प्रोड्यूस करता है। ये जी सोडियम वेपर लैंप है, सोडियम वेपर लैंप बड़ा फेमस है, वो 537 कुछ इस तरह नैनोमीटर प्रोड्यूस करता है वेवलेंथ। इसी तरह से मतलब मुख्तलिफ होते हैं। ये वेवलेंथ 537 मुमकिन है मैं गलत बता रहा हूं, आप बेशक गूगल करके चेक कर लें कि सोडियम वेपर लैंप कौन सी प्रोड्यूस करता है। इस तरह से फेमस सोर्सेज होते हैं जो उनका पक्का पता होता है, उन पे वो वेवलेंथ लिखी होती है कि ये इसी वेवलेंथ को प्रोड्यूस करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीम अगर बदलनी हो तो आपको वो सोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ेंगे। फर्ज करें कि ये कोई फेमस बल्ब है जो मोनोक्रोमैटिक बीम प्रोड्यूस करता है, और बीम भी पूछे कौन सी, 200 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ये बात जहन में रखें। जब आप इस बल्ब को ऑन करेंगे, इस बल्ब के ऑन करने से होगा क्या कि यहां से 200 नैनोमीटर के फोटॉन्स जाके लगेंगे इस मेटल प्लेट को। उससे क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। क्या इमिट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो है, मुमकिन है कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होकर वापस उसी कर्व्ड मेटल प्लेट में गिर जाएं, यानी निकले और यहीं पे वापस चले गए, उनका तो कोई मसला नहीं। मगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स टर्मिनल पी की तरफ आएंगे, और टर्मिनल पी की तरफ आकर वो इस पाथ के थ्रू मूव करेंगे इस तरह से। जब वो इस तरह मूव करेंगे तो गोया वो बैटरी को चार्ज करेंगे। टर्मिनल पी से पुश में, टर्मिनल पी नेगेटिव, टर्मिनल पी से पुश करेगा। जी टर्मिनल पी रिपेल कर रहा है इनको, कह रहा है खबरदार मेरे करीब ना हो। लेकिन अगर उनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगी, और कितनी काइनेटिक हो उनके एनर्जी हो उनके पास, विच इज बिगर देन चार्ज इनटू वोल्टेज। कितनी काइनेटिक एनर्जी हो विच इज बिगर देन चार्ज इनटू वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नीडेड टू मूव फ्रॉम दी, नीडेड टू मूव फ्रॉम दी, नीडेड टू मूव। टर्मिनल पी ये है बेटा, यहां लिख दिया मैंने, ये देखिए ये टर्मिनल पी है, नेगेटिव टर्मिनल पी है ये। आई एम सॉरी कि मैंने पहले टर्मिनल पी नहीं लिखा था, ये टर्मिनल पी नेगेटिवली चार्ज। तो जनाब काइनेटिक, दे मस्ट हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी दैट दे शुड मूव फ्रॉम द कर्व्ड मेटल प्लेट टू द नेगेटिव टर्मिनल पी, ठीक है कि नहीं है। ये नेगेटिव टर्मिनल पी की तरफ आ रहे हैं। हमने अपने नोट्स में टर्मिनल पी छोटा दिखाया है, मुमकिन है ओरिजिनल एक्सपेरिमेंटल सेटअप में टर्मिनल पी एक प्लेट की मानद हो ताकि इलेक्ट्रॉन्स के सामने आ रहा हो। तो अब देखें वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी तो इसके करीब जाएंगे। और ये वो केस है जिसमें बैटरी चार्ज हो रही है, और उसे कौन चार्ज कर रहा है? वो चार्ज कर रहा है, बल्ब चार्ज कर रहा है। बल्ब से निकलने वाली लाइट बैटरी को चार्ज कर रही है। कर्व्ड मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो लाइट्स फ्लो करवा रही है, अपने जोर पे फ्लो करवा रही है।
और बैटरी के अगेंस्ट, बैटरी की विल के अगेंस्ट फ्लो करवा रही है और बैटरी को चार्ज कर रही है, ठीक है कि नहीं? बैटरी को क्या कर रही है? चार्ज कर रही है। अगर आपने वो क्या कहते हैं, ये वाला ग्राफ अगर आपको याद हो, ये जो लेक्चर नंबर 3 में दिया गया था, ये वाला ग्राफ अगर आपको याद हो, तो ये जो मैंने सिचुएशन बनाई हुई है वो ये पर्पल सिचुएशन नहीं है, बल्कि वो ये वाली सिचुएशन, मैं इधर ले आया हूं बात को, ये वाली, ये जो ब्लू में सिचुएशन जिसमें नेगेटिव वोल्टेज होती है टर्मिनल पी की, ये मैं ब्लू सिचुएशन की बात कर रहा हूं। और स्टॉपिंग पोटेंशियल वो होता है जिस पे वो इलेक्ट्रॉन्स रुक जाते हैं, ठीक है कि नहीं? अब आपसे क्वेश्चन पूछने शुरू करते हैं, ठीक है कि नहीं? क्वेश्चन ये है कि जनाब पहले डाटा जो दिया गया, आपको बताया गया है, आपको कर्व मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन नहीं दिया गया, ठीक है कि नहीं? आपको कर्व मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन नहीं पता, आपको सिर्फ इतना पता है कि वो बल्ब जो लाइट कास्ट कर रहा है उस कर्व मेटल प्लेट पे, वो 200 नैनोमीटर कर रहा है। और 200 नैनोमीटर के बारे में आप जानते हैं, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है। इसका मतलब है इस बल्ब से निकलने वाली लाइट को कम से कम आपकी आंख नहीं देख सकती, एटलीस्ट आपको नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन वहां पड़ रही होगी, ठीक है ना? तो अब देखें क्या क्वेश्चन क्या है जनाब। स्टॉपिंग पोटेंशियल of 2.3 electron volt, so sorry, of 3 point volt, sorry, I'm sorry, 2.3 volt stopped the photocurrent। इसका क्या मतलब है? reduced या stopped the photocurrent और volt made photocurrent zero, reduce the photocurrent to zero। stopping potential of 2.3 volt electron, 2.3 volt reduce the photocurrent to zero। जी, ये है आपके पास सारी सूरत हाल, ठीक है कि नहीं है? अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि जी कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। कैलकुलेट, ये पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ वन फोटोन। जी, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ वन फोटोन। जी, तो कितनी होगी? एच सी अपॉन लैम्डा, वो किसके बराबर है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34। और स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 इंटू 10⁻8। और वेवलेंथ कितनी है? 200 नैनोमीटर। वेवलेंथ 200 नैनोमीटर है। जी, कौन बताएगा मुझे ये वैल्यू? जी जी, क्या वैल्यू है ये? जी बेटा, ये वैल्यू मुझे कोई बता दो बेटा। सर कैलकुलेट कर रहे हैं। जी सर 2 मिनट कर रहे हैं। 9.94 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। (9.94 into 10⁻⁻34). जी सर, यही आ गया। शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी बात आ जाती है, कैलकुलेट दी काइनेटिक एनर्जी
kinetic energy of, calculate the kinetic energy of emitted electrons. Maximum kinetic energy. Calculate the maximum kinetic energy of. Calculate the maximum kinetic energy of emitted electron. Calculate the maximum kinetic energy of emitted electrons. जी कितनी है वो? Calculate the maximum kinetic energy of all emitted electrons. जी kinetic energy maximum कितनी है? आपको stopping potential पता है तो उससे निकल आएगी जी। EVS वो कितना बनता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था जी? 2.3 वोल्ट। यहां पर देखें स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 2.3 वोल्ट रिड्यूस द फोटो करंट टू 0। जी जी कोई मुझे बता सकता है कि ये कितनी बनती है जनाब? जी 3.68 into 10⁻⁻19। अब तीसरा पार्ट है, तीसरा पॉइंट है, वो कहता है ये जी कि कैलकुलेट, तीसरा पॉइंट वो कहता है जी कि कैलकुलेट वर्क फंक्शन आपको पता है कि ये इक्वेशन लिखी गई सबसे लकी इलेक्ट्रॉन्स पर थी जो वर्क फंक्शन के बाद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकलते थे और मेटल से बाहर निकालने के लिए सिर्फ वो इस्तेमाल करते थे वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी। तो जनाब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन था 9.94 इंटू 10⁻⁻19। इस पूरे की जगह 9.94 इंटू 10⁻⁻19। वर्क फंक्शन हमें पता नहीं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमें पता है 3.6 इंटू 10⁻⁻19। तो वर्क फंक्शन किसके बराबर हो गया? 6.26 इंटू 10⁻⁻19। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना ये वो भी जरा अगर काइंडली बता दें। अभी तो ये तो आपने जूल्स में निकाला है, 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। और बेटा इस तरह बात तो ये भी करते हैं कि वर्क फंक्शन को देखकर मेटल को पहचान लेते हैं कि मेटल कौन सा। फर्ज करें अगर आपको नहीं पता कि उस फोटोइलेक्ट्रिक सरफेस के अंदर मेटल कौन सा लगा हुआ है, एक बल्ब आपको किसी ने पूरे का पूरा इस तरह दे दिया है और आप पहचान नहीं पा रहे कि ये जो कर्व मेटल प्लेट है वो कौन सी है, तो आप इस एक्सपेरिमेंट से उसका वर्क फंक्शन कैलकुलेट करें और वर्क फंक्शन कैलकुलेट करके आपके पास कैटालॉग होगा जिसमें वर्क फंक्शंस की वैल्यूज दी होंगी, उससे आप पहचान लेंगे कि ये फलां मेटल है। मुझे बताएं यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं हाजिर हूं जी। बेटा मुझे बताएं इस तक किसको नहीं समझ आई तो मैं हाजिर हूं। बाकी सब लोग, मोहम्मद अहमद, सर समझ आ गई। शाबाश। अब्दुल्ला, इज देयर एनी अब्दुल्ला? जी सर आ गई। अब्दुल्ला शमीम द ग्रेट। और वो दूसरा अब्दुल्ला नहीं है, दूसरा अब्दुल्ला खान। अच्छा जी। अच्छा यार मेरी बात सुने कि हम यहां तक इसको यहां पर हम खत्म कर रहे हैं इसको, ठीक है कि नहीं है? यहां पर हम अपनी इसकी रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।